Okay. So we'll discuss Gauss-Elimination method basically. ठीक है? So in today's session, not only I'll discuss and I'll write on the board the method, what is the method and all these things. In addition, you have to write the code basically. Are you getting the point? I will present the pseudo code. What is the pseudo code? What is the algorithm for that? And after that, you have to proceed with the code. Okay, that's what the target for today's session. Is it clear to everyone? समझ में आया क्या करना है? ऑनलाइन गूगल कोलैब जो भी आप अपने साथ में उसमें खोल के रखें, सो दैट हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेथड का. दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड in yesterday's session, that what is the numerical technique to solve the linear system is what basically linear system में जब हम solve करते हैं उसके पास हमारे कुछ equations होती हैं, कुछ unknowns होते हैं, उसको हम क्या करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं. ओके, let's say I have some equations in the form of ax equals to b. It means this is my system. Okay, so first target will be construct a argument matrix. That's what we have discussed tomorrow. भाई बैग निकाल के बैठ जाना, ऐसे क्यों बैठे? बैग डाला हुआ है, मुझे बाहर लग रहा है यार. ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट द ax म्यूट कर दो, कहीं से आवाज आ रही है तो वैसा मेरे को पता चल जाता है. ओके, so basically this is the argumented this is the system ax equals to b, and we'll try to construct the argument system. We'll try to first. So our target is we'll make the argumented matrix. Okay, what is the argumented matrix? It means we'll join two matrices. It means one is my square matrix, that is what A is my coefficient matrix, and B is my vector. Right hand side, the right hand side, the values are in vector. So basically, in the PPT, first we'll see what is the concept for this. Yeah. So we have three sections today. We'll discuss in first section, that is what introduction to Gauss-Elimination method, and then what is the advantage and limit of this, and example and pseudocode we'll discuss. And after that, you have to practice the code. You have to write the code. If there is any problem, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आपको एट अ टाइम आपको समझाएगी. क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में सभी का ऐसा होता है ना कि लाइक हो गया, आप तो है क्या ही लिखेंगे, क्यों ही लिखेंगे, क्या ही करना है ना. तो इसलिए around 20 to 25 minutes I will deliver the what is the content, what is the aim, and then it will be your task to execute and implement the code. Okay, so first introduction. Just I have introduced yesterday, that is what basically a system of a systematic method. Gauss-Elimination method is a systematic method in which we will have a system of equations. Okay, it means three equations and three equations and three unknowns and all. Okay, so basically first aim is to construct the argument matrix. It means first one is the we'll join matrix, coefficient matrix and vector together, and then we'll try to make this argument system as an upper triangular matrix. Okay, this is what echelon form. This is echelon form or row reduced form, you can say. And then we'll proceed forward with the back substitution. That is what the aim, which gives the value x and x, y, z, whatever it may be, the unknowns variable. Okay, so basically applications is just engineering में इसका use होता है, in science modeling simulations में इसका use होता है, numerical solution basically for computational problem, like to solve the system of linear equation basically. Okay, so method overview, steps आपको मैंने बता दिए, वही तीन step हम इसमें follow करेंगे. First one is the argumented matrix, that is what A, B. Second one is the applying the row operations, like you know what is the row operations? For any matrix, will like construct it for a echelon form, will perform some row operations. It means we are just adding and subtracting or multiplying by some constants, and will anyhow our aim will be to construct argumented matrix as a upper triangular matrix. Okay, so next one will be the perform back substitution, like that will be new task for everyone that I will explain. So first we'll have a system of equation like presented in your screen. That is what a11x plus a12x
x2 and a1 3. That it means 3 equations and 3 variable basically. Okay. After that, we'll join a coefficient matrix to the vector. That is what? Vector. Okay. So आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और वेक्टर को हमने कॉन्केटिनेट कर दिया है. वर्ड होता है कॉन्केटिनेट करना, मतलब हमने उसको जोड़ दिया. दैट इज व्हाट बेसिकली हम पाइथन में करेंगे. ठीक है. ओके. एंड आफ्टर दैट विल अप्लाई सम रो ऑपरेशंस लाइक फर्स्ट रो सेकंड रो को आपस में मल्टीप्लाई करना, या कैसे भी करके हम एक अपर ट्रायंगुलर सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करेंगे. ओके. सो अभी तक हमें एक चीज पता लग गई कि इस मेथड में हमें 3 काम करने हैं. So using the method steps, you can construct your own algorithm. So what will be the first target? First target, okay, let's see, this is my a1 x1 plus b1 x2 plus c1 x3 is equals to d1, and a2 x2 sorry x1 plus b2 x2 c2 x3 is equals to d2, and then a3 x1 plus b3 x2 c3 x3 is equals to d3, and this is what my system. Okay. What will be the first target? We will write it into this form, ax equals to b. So it is what? The coefficient matrix a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3. This is what my coefficient matrix, and then my vector is x1 x2 and x3, and next one will be the d1 d2 and d3. Is it clear? Okay. सबको पता है ये सब कैसे लिखते हैं? बहुत इजी है ये तो. Now next target will be the augmented matrix. Yeah, that is what the आपको क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ लिखना है, and then you have to concatenate this vector to here. Okay, that will be your augmented matrix. Now this will be the A dot B augmented matrix. So after that, okay, this is what my 3 cross 3 matrix. This is the vector 3 cross 1, and what is the order of this matrix? 3 cross 4. 3 cross 4. Na? This is what? 3 cross 4. Now our target is to construct it as upper triangular matrix. Okay, आपने अब तक पढ़ा होगा कि upper triangular matrix can be only a square matrix, but it is non-square matrix, rectangular matrix. So first try to construct only this matrix to upper triangular matrix. Okay, आपको सिर्फ इस coefficient matrix को upper triangular matrix में convert करना है. Okay, let's say मैंने कुछ row operations यहाँ पर लगाया, उसके बाद में I will just show in my PPT. That is what in my PPT I have solved one question. Let's say after some operations like row reduce form like PPT show करना. Okay, yeah, this is what the row reduce echelon form. Row को swap कर सकते हैं आप एक दूसरे से. Okay, second one is the scaling. It means by multiplying one scalar you can subtract and add. Okay, and adding and subtracting the rows, add कर सकता है, subtract कर सकता है. So these are the tasks. By using these tasks, your main aim is to construct an upper triangular matrix. Okay, let's say ये सब करने के बाद में I have a upper triangular matrix. After that you have to write it in a separate manner. Okay, क्या करना है आपको? आपकी जो मैट्रिक्स, again you have to write in this form ax equals to b, and now your a is a dash and b dash. It means it is a new a and new b. It is what you have calculated in your augmented matrix. So after that you will be a upper triangular matrix like this. You will have a one entry here only. Okay, and this is what my x1 x2 and x3, and I say, let's say some d1 dash, d2 dash and d3 dash is here. So what is my that is what the step back substitution. In back substitution we'll just perform. Back means पीछे से start करना. We'll first find x3, then x2 and then x1. Is it clear? So I can compare this whole thing. That is what I say, let's say this is what my a dash 33. So a 33 dash x3 is equals to d31.
What is the value of x3? Is it clear? So this I got the value of x3. It means for my last variable I have a value. Using this I can substitute. Okay, let's say in ideal case there is 2 entries. Okay, so I will just multiply this both because x1 is 0 for this. I say this is what my a dash 22 plus a 23 dash, and then this is what my x2 and this is x3. I have the value of x3. I can find x2 from here. Okay, are you getting the concept how the algorithm and how the steps is like proceeding forward? This is what the back substitution, and after that using x2 and x3 we can easily find x1. This is the algorithm for back substitution. Clear? हाँ या ना? ओके, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा. ओके, क्लियर? तो बस इतना सा है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड. नाउ थिंक फॉर द कोड. क्या करना होगा सबसे पहले? फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई भी सिस्टम गिवन होगा तो ऑब्वियसली हम इस फॉर्म में तो पाइथन को दे नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले numpy array बनाएंगे. विल कंस्ट्रक्ट विल like give input in the form of numpy array. Okay, 3x3, 4x4, whatever it may be. हम उसको पहले numpy array बनाएंगे एंड देन हमारे जो अननोन्स होंगे उसको हम किसी एक और सॉल्यूशन के अंदर ना वो करेंगे, स्टोर करेंगे. इवन यू कैन टेक 0, लेट्स से x1, x2, x3 0. कोई एक एम्प्टी एरे ले सकते हो या फिर कोई 0 एरे ले सकते हो. आप उसमें उसको स्टोर करोगे एंड देन यू विल परफॉर्म these row operation. For echelon form you have to perform some row operations. After that this augmented matrix will be separated and the back substitution will be done. Clear? Okay, okay, next. So एडवांटेज एंड लिमिटेशन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं. बिकॉज जब हमारे पास में मेथड है तो व्हाई व्हाट इज द नीड टू प्रोसीड फॉरवर्ड विद अनदर मेथड. सो एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच कैन बी इंप्लीमेंटेड इन कंप्यूटर एल्गोरिथम. ऑब्वियसली सारे मेथड को हम कर ही सकते हैं. Limitation is what the in like basically whenever we have the large system, large number of equation, so the converging rate of converging for this is a bit slow. It will converge a bit slowly to the exact solution. And second one is basically generally this equation gives the in integer values. Okay, whenever you will have a floating number of system, it means यहाँ पे a1, a2, a3 integers value हो जाएंगे, like points में आ जाएंगे. तो at that time error के chances इसके अंदर बढ़ जाता है. Whenever you will have a simple like numbers like 2, 3, 4 ऐसे number होंगे, at that time it will converge in a better way. Okay, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? जब फ्लोटिंग वैल्यूज बढ़ जाएंगी, डेसिमल पॉइंट जब बढ़ जाएंगे तो उस टाइम पे हो सकता है उसके अंदर एरर. क्योंकि आप जब एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना, ये एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना ही अपने आप में एक एरर वाला काम होता है. किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने पर ही उसका एरर बढ़ जाता है. ठीक है, जब आपके पास में सिंपल मैट्रिक्स होता है, यू विल परफॉर्म द सिंपल ऑपरेशंस एंड यू विल गेट द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन अ सिंपल वे. बट whenever it will be in decimal form and in a floating number, it will be like problematic for the exact solution and the approximate solution. Okay, so this is what the problem with this method. Okay, ये हमारा मेन काम नहीं. हमारा मेन काम क्या है? आपसे कोड लिखवाना है ना, यही काम है मेन. ओके, सो बेसिकली एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है. दिस इज व्हाट द एग्जांपल. 2x plus 3y plus z is equals to 9, 4x plus y minus z is equals to 7, minus 2x plus 5y plus 2z is equals to 3. यूजिंग गॉस एलिमिनेशन हमें इसको सॉल्व करना है. तो अब मेथड जो मैंने समझाया वही हम इसमें करेंगे. सबसे पहले क्या करना है? आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है. क्या किया आपने? जो भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके साथ में हमने क्या किया? उसके वेक्टर को, कॉलम वेक्टर को हमने कॉन्कैटिनेट किया. एंड आफ्टर दैट वी हैव सम एलिमिनेशंस टू मेक इट अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सी in second row point, second row pivoting, in the second like paragraph you can see row 3. Okay, after that there will be upper tabular matrix. That is the only of the part of the coefficients value. Not this whole matrix can't be a upper triangular matrix because it is not a square matrix. Okay, it is a rectangular matrix. So आपको क्या करना है? Try to construct this like coefficient part of the matrix to be an upper triangular matrix. Okay, so हमने क्या किया? कुछ रो ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म किए हैं. अब इतना आप सभी को पता है अब रो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं. सी यहाँ पर क्या लिखा है इस मैट्रिक्स में? फर्स्ट रो इज 2, 3 and 1.
यूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट A1123, व्हाट इज द अप्रोच? यूजिंग दिस एलिमेंट आपको इन दोनों को जीरो बनाना है। ओके, यूजिंग दिस आपको इन दोनों को जीरो बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 2 है आपके पास में, तो क्या करना है आपको, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में से लेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। पूरी रो की बात कर रहा हूं मैं। एंड सेकंड वन इज द नीचे में आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे उसको। तो देखो आप, आई थिंक यही सौरभ एक सेकंड, हाँ आई थिंक यही यहाँ कर रखा है। फर्स्ट R2 को हमने चेंज किया, R2 माइनस 2 इंटू R1, एंड सेकंड वन इज व्हाट, R2, सौरभ एक सेकंड, R3 minus like second one is the R3 like changing with R3 plus R1, just उसको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो वो जो है वो फर्स्ट कॉलम में जीरो बन जाएंगे ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमने रो ऑपरेशन लगा उसमें हमने क्या किया, क्योंकि हमें नीचे वाला जीरो बनाना है तो क्या करना होगा, नीचे वाली एंट्री जस्ट सिंपल इज दिस डिवाइडेड बाय दिस को इस रो से मल्टीप्लाई करके लेस करो, ऑब्वियसली वो जीरो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्या करना है, एनी हाउ इनको जीरो बनाना है। इज इट क्लियर? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मेन टास्क क्या है, हमें कैसे कोड लिखना है, एंड आफ्टर दैट वही बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। हम क्या कर देंगे, इसको लाइक कंपेयर कर सकते हैं, -1/4 एंड -4/5 को हमने कंपेयर किया, विल कंपेयर एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ z, एंड आफ्टर दैट वी कैन गेट द y एंड देन x। इज इट क्लियर? So this is what the simplest algorithm for the Gauss-Elimination method. Now the task is how can we write the code for this? Okay, so first just let me explain what is the pseudocode and what is the algorithm. देखो algorithm वैसे मैं जो बता चुका हूँ वही है, but the scene क्या है, उसे हमें actual में Python में कैसे लिखना है, how can we concatenate these both metrics and how can we go proceed forward with the echelon form, or you can say row reduce operations and all. So that is what the thing जिसको हम कोड में लिखना सीखेंगे. That's why I am presenting here the pseudocode. Okay? Is it clear? Scheme में किसी को कोई doubt? Is there any problem? Okay? Now I can consider that you can write a code. You will be able to write a code. Okay? So एक एक पीसी पकड़ लो अपना और वहां, हाँ बताइए क्या? नो दैट्स व्हाट, वही तो हम बता रहे हैं ना आपको. मैंने वही तो बोला ना कि इसलिए मैं आपको एल्गोरिदम समझाऊंगा इसको एक्लन फॉर्म बनाने के लिए. हमें बताना पड़ेगा उसको. ठीक है, अभी हम देखते हैं. बिकॉज हम क्या करेंगे, अच्छा एक बार ना एल्गोरिदम समझो एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक यू विल गेट योर आंसर. ओके, सी इनपुट क्या होंगे हमारे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड वेक्टर. दो इनपुट होंगे जो कि हमें हमेशा चेंज हो सकता है. दिस इज व्हाट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड राइट हैंड साइड वेक्टर, दैट इज व्हाट द n क्रॉस 1 ऑर्डर. नेक्स्ट वन इज द इनिशियलाइज वैल्यू. हमें क्या क्या देना है, बेसिकली हमें a का लेंथ देना होगा. ऑब्वियसली जब आप उसमें एंटर करोगे तो लेंथ उसका मिल ही जाएगा. एंड देन हमें लूप को काउंटर करना है उसके अंदर. बेसिकली इसमें फॉर लूप लगेगा, दो नेस्टेड लूप का यूज होगा इसके अंदर. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ मैट्रिक्स, व्हेनेवर यू विल हैव अ 2D मैट्रिक्स और 2D एरे, देयर विल बी अ नेस्टेड मैट्रिक्स, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट वन विल बी द सॉल्यूशन वेक्टर, जो कि आप जीरो, मैं बता रहा हूं ना, जब आप ये वाला जो है ना, ये वाला जो वेक्टर है, इसकी कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा ना. इवन यू कैन टेक द एम्प्टी एरे, आप सीधा एम्प्टी एरे लो, या फिर क्या करो आप यहां से x1 x2 x3 को जीरो कंसीडर कर लो, है ना. np.zeros कल मैंने आपको बताया था कैसे किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर का जीरोस मैट्रिक्स कैसे हम उसमें एंटर करते हैं. दैट इज व्हाट द सिस्टम. क्लियर? सॉरी. ओके, नेक्स्ट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कंबाइन करना, हॉरिजॉन्टली कंबाइन करना इसको हम कहते हैं, इसको कॉन्केटिनेट कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. ये सब करना है एक्चुअल में. ठीक है, अब ये कैसे करना है विल हेल्प, बट आपको इनिशियली आपको बस जस्ट लिखना है कि कैसे हम उसको करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट देखो, अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको आप खुद थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पे एजीएम का मतलब है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जो कि नया मैट्रिक्स बन रहा है. ठीक है, उसका मतलब है एजीएम. तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो है या नहीं है. क्लियर? वाई? जब भी डायगोनल एंट्री जीरो हो जाएगी, लेट्स सपोज दिस a1 इज जीरो, तो क्या इस a1 की हेल्प से आप इन दोनों को जीरो बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो ना. एट दैट टाइम द मैट्रिक्स विल बी नॉट डायगोनली डोमिनेंट. इज इट क्लियर? वर्ड डायगोनल डोमिनेंट का मतलब होता है कि ये वाले जो
entries है, diagonal entries, these entries should be greater than the sum of these both entries. Is it clear? डायगोनल एंट्रीज का वैल्यू इन दोनों एंट्रीज के सम से बड़ा होना चाहिए. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल डोमिनेंट. ओके, वो मैंने कल भी डिस्कस किया था. आई थिंक डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं डिस्कस किया था कल. मैंने बताया तो होगा कि डायगोनल डोमिनेंट का हमें जरूरत पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट द यू कैन से द सिंपलेस्ट कंडीशन फॉर द डायगोनल डोमिनेंट, कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए. एंड देन आप क्या करेंगे, बिकॉज अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, वो जीरो से डिवाइड कर लेगा ना. हर बार जीरो से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन वैल्यू आ जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा ना. इज इट क्लियर? सो वो जीरो नहीं होना चाहिए. विल ट्राई कि हम ऐसा ही सिस्टम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे जिसमें डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं होंगे. ओके, आगे मैं भी बताऊंगा कि whenever the matrix will not be a diagonal dominant, so how can we like reduce it into a diagonal dominant, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे whenever we will go for Jacobi iteration method. ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए स्केलिंग फैक्टर लगाना. अब आप कह रहे हैं, जैसे कह रहे थे ना कि कैसे पता चलेगा कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा, तो उसके लिए स्केलिंग फैक्टर सीधा, अगर मुझे इसको जीरो बनाना है या फिर चलो इसको जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो. हुआ या नहीं हुआ? स्केलिंग समझ में आया आपको? जैसे अभी हमने किया था, अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई दिस रो माइनस दिस रो. इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट द स्केलिंग फैक्टर. इसको क्या कहते हैं? स्केलिंग फैक्टर कहते हैं. दिस इज द ट्रिक कि किसी भी मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है. नॉट एक्चुअली एक्लॉन फॉर्म, आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड. एक्लॉन फॉर्म का मतलब होता है कि फर्स्ट जो पाइवट होता है वो वन होना चाहिए. दैट इज नॉट exact echelon form, that is row reduced form, you can say. Echelon form is just a type of row reduced form. Okay, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए echelon form में आपने देखा होगा हमेशा फर्स्ट पाइवट जो होता है वो कैसा होता है, वन होता है. Okay, that is what the echelon form. So other than using the echelon form, we can use the word row reduced form. Okay, so this is what the scaling factor. उस scaling factor को आपको ऊपर वाले एंट्री से मल्टीप्लाई करना है. देखो आप कर रखा है, उस एंट्री से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली एंट्री में से माइनस करना. दिस इज व्हाट द फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ए जे. जे मींस हियर कॉलम, इस वाले कॉलम में से ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में से इसका दोनों का रेशियो निकालना आपको, उसको फिर इस वाले रो से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट जीरो. समझ आया? जस्ट थिंक ओवर इट फॉर अ बिट. थोड़ा सा सोच के देखो कि कैसे हम उसको जीरो बना सकते हैं किसी भी एंट्री को. क्लियर? तो यहां तक तो पहुंचने की थोड़ी सी बात की बात है. फर्स्ट आपका टास्क ये है कि आप जस्ट मैट्रिक्स को एंटर करना सीखें, आपका क्या क्वेश्चन है एंड ऑल. क्लियर? ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं एंड आपको उसको कोड में लिखना है. यू कैन स्टार्ट द कोड. यहां तक आपको करना है, उसके बाद में मैं आपको बैक सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा. चलो मैं समझा देता हूं बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, फिर हम एक ही साथ में कर लेंगे. चलो पहले करते हैं काम, फिर देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है. ओके, गूगल कॉलम आप अपना ओपन कर लीजिए. सभी स्पाइडर होगा या नहीं होगा सब में मुझे नहीं पता. सो वी हैव हाफ एन आवर. हाफ एन आवर में हम ट्राई करते हैं कि कोड होगा. ठीक है, बिकॉज हमने 4:30 स्टार्ट किया तो 5:30 तक हम काम करेंगे. तो टाइम पास नहीं करना है प्लीज. थोड़ा सा आप क्या करें, उसको समझने की कोशिश करें, आगे बढ़े. क्लियर? गूगल कॉलम ओपन कर लीजिए और उसमें आप उसको ट्राई कीजिए. ठीक है, वो टीच मिनट में होता है, डायरेक्ट होता है टीच मिनट में. क्या कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो. ओके, अटेंशन एवरीवन, एक बार इधर देखो. चलो सी, तो मतलब आप आज पता लग गया कि आपको कि कैसे कोड लिखना है, मैट्रिक्स कैसे एंटर करते हैं, ऑल दीज थिंग्स. विल दिस कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीकेंड, सैटरडे संडे. हम इसी टाइप से डिस्कशन रखेंगे, नॉट ओनली कि लेक्चर देना, लाइक पढ़ाना एंड ऑल. तो जो आज जैसा हुआ वैसा ही रहेगा. तो अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा इस फील्ड में दें ताकि हम एक्चुअल में कोड लिखना सीख पाए. ठीक है, ऐसे हम कुछ स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट हम जब इतना, अब आपने ना, मैं समझ रहा हूँ आपने यहाँ तक कर लिया होगा जिसमें लाइक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स तो ऑलमोस्ट सबका बन गया होगा ना. जो इसका स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही 1.66 समथिंग आएगा, -1.66 ऐसा करके. ठीक है, दैट इज व्हाट करेक्ट.
उसके बाद में आपको क्या करना है, जस्ट देखो ये जो स्लाइड है ना, इसमें लिख रखा है इन रिवर्स ऑर्डर आपको कंपेयर करना है, लास्ट एंट्री और वो वाली एंट्री को कंपेयर करना है। तो इस टाइप से आप देखो डिवाइड बाय क्या करना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के। क्योंकि देखो एक चीज यहाँ पे देखो, जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा तो ये वाले एंट्रीज आएंगी उसके अंदर, तो क्या करना है आपको, इसके ए आई आई जे का क्या करना है, आपको डिवाइड करना है इधर वाले के अंदर, ठीक है। एट द एंड क्या करना है, ये वाली चीज है, इसको जस्ट इधर डिवाइड करना है, यू विल गेट x3। जब आपको x3 मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या करना है, यहां से वापस उसको ऊपर वाले रो के अंदर लाना। दिस इज व्हाट इस स्लाइड में जो भी शो हो रहा है ना, वो करना है एट द एंड आपको बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो कैन आई एक्सपेक्ट द कोड फ्रॉम यू गाइज फॉर लाइक नेक्स्ट वीकेंड और नेक्स्ट सेशन? पक्का आप लोग ट्राई करना। देखो अभी विदाउट चैट जीपीटी आप लोगों ने इतना कर लिया, तो नेक्स्ट भी विदाउट चैट जीपीटी करना। लिटरली बता रहा हूँ, ये एक कोड लिख लिया ना, दिस इज व्हाट वन ऑफ द लाइक टफेस्ट कोड, यू नो। थोड़ा इसमें स्केलिंग का, लूपिंग का एंड ऑल सब कुछ, रेंज वगैरह सब बता रखा है आपको। जस्ट आपको क्या करना है, आगे बैक सब्स्टिट्यूशन तक जाना है और उसको प्रोसीड करना है। क्लियर? करेंगे ना आप सभी? ओके, आप सभी इसको करें। हमारा एम ये नहीं है कि हम सिर्फ समझाएं या सब कुछ करें, हमारा है कि आप एट द एंड कोड लिखना सीखें। क्लियर? ओके, तो मतलब एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस फॉर्म तो सबका हो गया। नेक्स्ट आपको सोल्यूशन बताना है मुझे इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ये जो कोड है अभी सेव करो और अपने खुद को ही मेल कर दो, ताकि वो आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पीसीज में छोड़ के नहीं जाना है, इसी कोड को यहाँ से कट कॉपी करके अपने को खुद को ही मेल करो, ताकि तुम्हारे पास में वो कोड आ जाए। सो यू कैन प्रोसीड विद दिस कोड ओनली। क्लियर? ओके, समझ आया ना? ओके, थैंक यू। टेल देम कि मैथ्स डिपार्टमेंट की लैब